Good afternoon, students. This is Akash Kumar Sani. Today we are going to study ray optics. Subtopic is refraction through a parallel slab. So, in previous classes we have studied what is refraction and what is Snell's law, right? So, what is refraction through a parallel slab? So, suppose there is a denser medium which is denoted by B. There is a rarer medium which is denoted by A. The refractive index of the denser medium is mu, right? And the refractive index of rarer medium is taken as 1. So T is the thickness of the slab. Suppose there is a light entering in the denser medium, and after that there is a phenomena of refraction. There will be two refraction. There are two surfaces, so there will be two refractions. One is on this surface and another one will be on this surface, right? So there will be two normals, normal and this normal, right? Now what is this dot dot line indicates? This line indicates the original path of the incident ray. That means अगर ये आपका स्लैब यहाँ पे नहीं होता, so light will follow this path and it will go straight. Because of this glass slab, light is following this path, and that is known as, because of that there is a distance between original path and the refracted ray, and that distance between the original path of the light and refracted ray is known as lateral shift, that we have to calculate in this session. So why is a lateral shift? That is a perpendicular distance between the incident ray, path of the incident ray, and the refracted ray. Now as we know, there are some angles I1, R1, I2, R2 are the angle of incidence at phase 1, phase 2, phase, and delta is the angle of deviation. Now what is angle of deviation? So angle of deviation is the angle at which the light get refracted from its original path. यानी लाइट जो है ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई है, कितना आपकी रिफ्रैक्ट हो गई है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. तो ये उसका ओरिजिनल पाथ था और ये उसकी रिफ्रैक्टेड रे है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, नाउ यू अप्लाई द स्नेल्स लॉ ऑन दिस फेस. तो आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए विल बी इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1, राइट? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. सिमिलरली सेकेंड फेस पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन I2 अपॉन साइन R2, राइट? लेकिन वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. क्लियर है? नाउ आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम लोग ने पढ़ा था पिछले क्लास में, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, दो मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, राइट, अगर रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 हो जाएगा आपका. तो यहाँ से हम लोग रखेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज़, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. और यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि जो आपका I1 होगा वो R2 के बराबर होगा, यानी I1 जो होगा आपका, दिस इज I1, दैट विल बी इक्वल टू योर R2. दैट मीन्स इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. और I1 इज इक्वल टू R2, वो तो हम लोग को पता भी चल रहा है कैसे, ये और ये नॉर्मल है आपका, और ये क्या बन रहा है आपका, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, that is R1 and R2 will be equal because of alternate angle, right? And because of that I1 and R2 will be equal, I1 and R2 will be equal, that means multiplication of these two term will be equal. और ये जब इक्वल टू 1 है, इसका मतलब I1 और I2 को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा आपका. क्लियर है? ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग. तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया I1 इज इक्वल टू R2 एंड R2 इक्वल टू I1. नाउ व्हाट इज लेटरल शिफ्ट? सो लेटरल शिफ्ट का ये फॉर्मूला आ गया, y इज इक्वल टू टी साइन डेल्टा अपॉन कॉस R1. अभी आया कैसे वो देखते हैं. तो पहले इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ आप लोग, ये वाला ट्रायंगल में, इसमें लगा दीजिए साइन डेल्टा. तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी y अपॉन हाइपोटेनियस. ये हाइपोटेनियस है आपका. अब ये हाइपोटेनियस हम लोग कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ आप.
है ना, जिसमें R1 एंगल बन रहा है उसमें लगा दो cos R1। तो cos R1 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका t और हाइपोटेनियस h हो जाएगा आपका। तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा आपका, t अपॉन cos R1, cos R1। और यहाँ पे हम लोग को हाइपोटेनियस ही रखना, तो यहाँ पे रख देंगे t अपॉन cos R1। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसको इधर लेते जाना, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन डेल्टा इंटू टी अपॉन कॉस R1। क्लियर है? आई होप कितना क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो साइन डेल्टा, डेल्टा को और क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग फिगर में देखें तो देखो ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है आपका, इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। दैट मीन्स आई विल बी इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, I1 माइनस R1। ठीक है, I1 माइनस R1, यही चीज़ है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग साइन डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस R1। तो I1 माइनस R1 लिख दिए, राइट। अब मान लो कोई स्पेशल केस जिसमें क्या हो, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, और आपको पता है जब एंगल वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख लेते हैं, थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख लेते हैं हम लोग, 1 लिख लेते हैं, है ना। ये थीटा आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए, यानी 10 डिग्री से कम होगा तब हम लोग बोलते हैं कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, राइट। तो स्पेशल केस देख लेते हैं, जब आपका एंगल्स क्या हो जाएंगे, वेरी स्मॉल हो जाएंगे, व्हेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इफ़ I1 इज़ वेरी स्मॉल देन R1 इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। ऑब्वियस सी बात है, अगर I1 आपका स्मॉल है तो R1 तो उससे भी स्मॉल हो जाएगा। देन साइन I1 माइनस R1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1, क्योंकि साइन हट जाएगा यहाँ से, राइट। कॉस R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, मैंने अभी बताया। तो यहाँ से अब जब इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा t इंटू I1 माइनस R1, t इंटू I1 माइनस R1। अब देखो यहाँ से अगर I1 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, t इंटू I1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस R1 अपॉन I1, यही बचेगा। अब R1 अपॉन I1, R1 अपॉन I1, ये देखो यहाँ पे क्योंकि एंगल स्मॉल हो जाएगा तो साइन हट जाएगा आपका। R1 अपॉन I1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन म्यू बी ए लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे लिख देंगे 1 अपॉन म्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, यही नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो यही हो जाएगा आपका क्या, y इज इक्वल टू I1 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी का भी लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हैं, अगर हम लोग को थिकनेस पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम अगर हम लोग को पता है तो। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब, ये आपका फिगर हो जाएगा। फिगर को आप लोग एक बार देख लीजिए, ये आपका I1 है, ये R1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो जाएगा I2 यानी सेकेंड सरफेस पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा R2 यानी सेकेंड मीडियम से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, सेकेंड सरफेस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये Y क्या है आपका, लेटरल शिफ्ट, राइट। अब आगे हम लोग इसको देख लेते हैं, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है साइन I1 अपॉन साइन R1। उसी तरीके से रेयर मीडियम का अगर डेंसर मीडियम के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका I2 अपॉन R2, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि I1 R2 इक्वल है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है आपकी, पैरेलल है। पैरेलल यानी दोनों के एंगल अगर हम निकालेंगे, दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0 तो होता है, 0 या 180, राइट। वैसे ही R2 बराबर क्या हो जाएगा, I1, R2 बराबर क्या हो जाएगा, I1, राइट। लेटरल शिफ्ट पढ़े, उसके बाद लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला ये हो गया। उसी को और ये लिख सकते हैं हम लोग, स्पेशल केस में देखिए अगर एंगल स्मॉल है तो ये हो जाएगा, और उसी का फॉर्मूला बन जाएगा जब स्मॉल एंगल होगा तो y t इंटू I1 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब, कंपाउंड स्लैब में से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो देखो कंपाउंड स्लैब किसे कहते हैं, जब मोर देन वन स्लैब आपका होगा तो उसे हम लोग कंपाउंड स्लैब कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपका दो स्लैब हो गए, एक का
नाम हो गया बी, एक का नाम हो गया सी, और उसके ऊपर नीचे क्या है आपके रेयर मीडियम, जिसको हम लोग ने नाम दे दिया ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू ए, म्यू बी, म्यू सी, और म्यू सी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। अब लाइट आपकी इंसिडेंट होगी और इस तरीके से आपकी डेविएट होते हुए आपका ये फिगर बन जाएगा। नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। अब बताओ I1 R1 R1 R2 R2 I1, ये देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। हम लोग ने अभी पढ़ा कि इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल होते हैं, और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं आपके अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, साइन I1 अपॉन साइन R1। ये फॉर्मूले में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 अपॉन साइन R2 हो गया। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगा, साइन R2 अपॉन साइन I1, राइट। लेकिन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। ये हम लोग ने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में। और आप ये भी लिख सकते हो कि म्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल इनटू म्यू ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू म्यू ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी म्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू म्यू ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू म्यू ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यानी अगर आपको कंपाउंड स्लैब दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली क्या निकाल लो, इनिशियल और फाइनल, इनके बीच का आप साइन आई अपॉन साइन आर निकाल लो, वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, म्यू ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए अपॉन म्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब इसको लिखने के तरीके हैं अलग अलग। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एपरेंट डेप्थ ऑफ द लिक्विड। एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब आप नहाने जाते हो तो आपको जो बाल्टी होता है, बाल्टी का जो तल होता है वो आपको ऊपर दिखाई देता है। या फिर आप देखे होंगे कि एक ग्लास, कांच के ग्लास ले लो और उसके अंदर वाटर फिल कर दो और उसके अंदर पेंसिल डाल दो, तो अगर आप उसके सरफेस पे देखोगे जहाँ पे वाटर है आपका, तो वहाँ पे पेंसिल जो है थोड़ी सी कटी हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है। उसके बाद में आप देखते होंगे कि अगर कोई ग्लास स्लैब है और उसको कॉइन के ऊपर रख दो तो कॉइन ऐसा लगेगा कि ऊपर उठ गया है आपका। सो दैट इज नोन एज अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ यानी एक्चुअल डेप्थ वो नहीं होती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो हम लोग को दिखाई देता है अपरेंट डेप्थ। तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ लिक्विड इन अ ग्लास, ऊपर क्या हो जाएगा रेयर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया बी। ये हम लोग ने एक कॉइन डाल दिया, या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो ओ है आपका। अब वहाँ से क्या होगा, लाइट विल इमर्ज इन ऑल डायरेक्शंस। लाइट क्या होगी, ऑल डायरेक्शन में आपकी इमर्ज होगी। तो हम लोग एक लाइट रे ले लेते हैं। अब क्योंकि आपका डेंसर से रेयर में जा रहा है इसलिए नॉर्मल से अवे होगा, और अगर एक परपेंडिकुलर लाइट रे तो उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा सीधे चला जाएगा। अब हमारी आइज़ अगर यहाँ पे होंगी, अगर आपकी आइज़ यहाँ पे होगी तो आइज़ क्या करती है, आइज़ एक्चुअली में क्या करती है, जो रेज होती है उसको बैक ट्रेस करती हैं। तो बैक ट्रेस जब करेंगी तो वो क्या करेंगी, ये वाली रे तो आपकी इधर ही जा रही है, लेकिन ये वाली जो रे है आपकी वो कहाँ पे आके मिलेगी, यहीं पे आके मिल जाएगी, जिससे ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट यहाँ पे ना हो कि यहाँ पे है आपका। दैट इज नोन एज अपेरेंट शिफ्ट और अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें। ये हम लोग ने सरफेस बना दिया, ये हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये आपकी लाइट रे जो है, अगर इसको आप बैक पीछे की तरफ ट्रेस करोगे तो ये आपकी ओ डैश पे आके मिलेगी, है ना। ये नॉर्मल हो गया आपका। ये एच ए मतलब हाइट ऑफ एपरेंट ऑब्जेक्ट, यानी और हाइट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एच आर हो गया आपका, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, अब क्योंकि ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा आपका, है ना, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। सिमिलरली ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। और अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा आपका, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये आपका पैरेलल हो जाएगा, तो जितना एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ आप लोग, सॉरी इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, ये वाले में। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, साइन आई इज इक्वल टू,
हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिख सकते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर लिख दिया है, क्लियर इतना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसका जस्ट क्या कर दो आप, रेसिप्रोकल, यानी साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आई। नाउ अब देखो ये कैसे आ गया आपका साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। देखो कैसे निकाले इसको, इसमें साइन आर लगा दो आप। साइन आर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। वैसे ही साइन आर अगर आप लगा दोगे, साइन आई लगाओगे, तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्लियर है। अब क्योंकि आपकी ये जो एंगल है बहुत स्मॉल होता है, एंगल बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है ना, इसको हाइपोटेनियस ना लेके हम लोग क्या ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ही ले लेते हैं। क्योंकि एंगल क्या है, बहुत क्लोज होता है, बहुत स्मॉल होता है, इसी वजह से आपका ये जो लेंथ है और ये लेंथ क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, बट दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, एंड दैट इज वाई यहाँ पे आपका रेशियो क्या आ जाएगा, एच आर अपॉन एच ए आ जाएगा। अपरेंट डेप्थ ऑफ अ नंबर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल यानी जो मिक्स नहीं हो रहे हैं। अगर आपके नंबर ऑफ लिक्विड होंगे तब क्या हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एच ए अपरेंट हाइट इज इक्वल टू एच आई अपॉन म्यू आई। अपरेंट शिफ्ट क्या हो जाएगा इस केस में, अपरेंट शिफ्ट हो जाएगा एच आर माइनस एच ए, यानी एच आर में से एच ए को माइनस करो तो यही शिफ्ट हो जाएगा आपका, राइट। दैट इज नोन एज अपरेंट शिफ्ट, क्लियर है। वो कितना हो जाएगा आपका एच आर माइनस, इसके जगह पे एच ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एच ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एच आर अपॉन म्यू, एच आर अपॉन म्यू लिख सकते हैं। अब एच आर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, वन माइनस म्यू। तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा अपरेंट शिफ्ट का, एच आर, एच आर क्या है आपका रियल डेप्थ इनटू वन माइनस वन अपॉन म्यू, म्यू क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। इफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेयर मीडियम, अगर ऑब्जर्वर क्या है रेयर मीडियम में है, एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट क्या है डेंसर मीडियम में, तब एच ए क्या होगा, एच आर से कम होगा। एच ए क्या होगा, एच आर से कम होगा। हम लोग ने यहाँ से ऑब्जर्व किया डेंसर रेयर मीडियम में से, इसीलिए उस केस में एच ए और एच आर क्या हो जाएंगे आपके अलग अलग। अगर मान लो इसका उपटा, जैसे आपका बर्ड, जो बर्ड है वो फिश को क्या करती है, देखती है, तो उसको क्या करता है, वो एक्चुअल डेप्थ से उसको ऊपर की तरफ दिखाई देती है फिश, ठीक है ना, बर्ड को। लेकिन अगर मैं फिश की बात करूँ तो फिश को जो बर्ड दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है, वो सेकेंड केस में आपका बर्ड अपीयर्स टू बी फार्दर देन एक्चुअल हाइट, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, एच ए क्या हो जाएगा, एच आर से ज़्यादा हो जाएगा, यानी जो अपेरेंट हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एच आर से एक्चुअल से ज़्यादा हो जाएगी। उस केस में जो अगर फिश देखेगी किसको, बर्ड को, तो उसको क्या कहाँ दिखाई देगी, एक्चुअल जहाँ पे उसकी हाइट है उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे दिखाई देगी। So next topic is total internal reflection that we will study in the next lecture. So that's all. We will bind up now. Thank you so much. Have a nice day.